Hello. 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 हेलो क्लास आवाज आ रही है? हेलो हेलो यस सर, आवाज आ रही। हेलो बेटा, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो 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 बेटा, आवाज आ यस रही है? सर। हाँ, आ रही है सर। आवाज आ रही है। ओके okay, so we start next lab here. In this lab the P spice and right now am I audible? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। सर आ रही है। आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं भी आपको एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट वेट. That will tell you what are the syllabus that is covered in this lab basically. Clear? सिलेबस पार्ट में आपको पहले दिखा दे रहा हूँ कि क्या सिलेबस आपका कवर होगा. जस्ट वेट. So I'm just sharing you the file initially. Share you the file right now. Okay. ये फाइल दिख रही है बेटा सभी को? This file is visible? यस सर। Okay. Actually, some network issue were there also. That's why we have been delayed in the connection. Clear? Some Zoom was creating problem. Okay, right now we are connected. I think the network issues has been resolved. Okay, so ये PDF आप सभी लोगों को शेयर हो रही होगी. Clear? This lab is exactly CAD of Electronics lab, and the code is KEC 653. Clear? This is your first lab interaction with me. Clear? And basically, if you see the syllabus of this, clear? The part A consists of the experiments that is based on P-SPICE tool. Okay, and the part B exactly consists of VSDL base. Clear? That is VSDL programming module or Verilog module. So we have a total number of 10 experiments as per the syllabus. Clear? But here you can see the suggestive experiments are more than 10. Clear? But we only follow 10 experiments as per the terms and condition of the university. Clear? So out of 10 experiments, we have taken 7 of them from P-SPICE exactly, and 3 of them are from the VSDL. Clear? आवाज आ रही बेटा सभी को? Clear? यस सर। Okay. So इसमें आप देखेंगे most of the experiments belong to the subject integrated circuit that you have studied as well as VLSI. Clear? So
एक सब्जेक्ट आपने आईसी पढ़ा होगा, क्लियर। आईसी में आपने देखा होगा ये जितने भी एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मोस्टली आपने आईसी सब्जेक्ट में, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। अब इसमें देखिए पहला एक्सपेरिमेंट अगर मैं बात करूं, दैट इज बेस्ड ऑन इन्वर्टर्स, क्लियर, बीजेटी इन्वर्टर, क्लियर। You will study about the transient analysis and DC analysis, clear. Transient analysis basically deals with the time domain analysis, clear, where you will check the voltage or current response with respect to time, clear, for which BJT inverter, clear. So in the VI characteristics, or you can say the transfer characteristics, you will observe the how the behavior of characteristics change either in voltage respective or either in current respective with respect to time, clear. One axis will be the time axis we can say, or ठीक है, in transient behavior, clear basically. So transient response में आप ये देखेंगे कि how the inputs are getting and how the outputs are changing, clear, according to the input changes, clear. Are you getting my point? It means suppose you are giving input 0 or 1, clear, and as this is an inverter circuit, so inverter means it will just invert the input whatever you are providing. If you are giving 0 input, then output will be high, just revert of that, and if you are giving 1 input, then output will be 0. So just invert, you will get at the output side, clear. So what we can say, an inverter basically perform the reverse operation, whatever we are providing at the input side, we just get the revert of that at the output side, clear. That's why it is known as inverter. You may design inverter circuit using MOSFET as well as BJT, clear. MOSFET में भी आप देख सकते होंगे, जो सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको NMOS इन्वर्टर दिख रहा होगा, क्लियर, सभी को दिख रहा है ये, हेलो हेलो, यस सर दिख रहा है। ओके। तो जो आप एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड देख रहे होंगे, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन योर इन्वर्टर, दैट इज NMOS इन्वर्टर, क्लियर। एंड इसमें क्या है, हम लोग जैसे CMOS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, PMOS एंड NMOS, ये सभी को पता होगा। CMOS is a complementary metal oxide semiconductor. That is basically CMOS transistor is the combination of NMOS transistor. NMOS is what? N-channel MOSFET, and PMOS is P-channel MOSFET. तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो CMOS बनता है, ठीक है। और हम जो इन्वर्टर डिजाइन करते हैं, इन्वर्टर आप इंडिविजुअल NMOS से भी बना सकते हैं, ठीक है, CMOS इन्वर्टर भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे आपका जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, दैट इज बेस्ड ऑन CMOS इन्वर्टर, जिसमें आप NMOS एंड PMOS दोनों यूज करेंगे। और अगर हम सिर्फ NMOS की बात करेंगे तो उसमें केवल और केवल हम NMOS यूज करेंगे इन द डिजाइन, क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगर BJT की बात करें तो BJT में आप लोग को पता है, BJT से अगर हम इन्वर्टर बना रहे हैं तो हम सिंपली NPN और PNP ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, क्लियर। उसमें हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, बेस टर्मिनल और एमिटर टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। तो इनपुट हम जनरली जो देते हैं, अगर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, दैट इज मोस्ट सुटेबल कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल 3। सो कॉमन एमिटर में जैसे कि आपको पता है, इनपुट हम लोग अप्लाई करते हैं बेस टर्मिनल पे और आउटपुट हमको मिलता है कलेक्टर टर्मिनल पे, क्लियर। सो इट मीन्स कि इनपुट जो आप दे रहे हैं वो बेस पे दे रहे हैं, आउटपुट आपको कलेक्टर से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनपुट जो बेस पे आप दे रहे हैं या तो लो देंगे या हाई देंगे, ठीक है। इन अ वेरी स्मूथ वे वी कैन से 2 टाइप्स ऑफ इनपुट्स में बी देयर, ईदर इट विल बी हाई और लो एट द इनपुट साइड, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, अगर लो देते हैं तो ट्रांजिस्टर आपका ऑन नहीं होगा इनपुट पे, अगर हाई देंगे तो इनपुट का ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ठीक है। अगर आप लो देते हैं तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा एज पर द कंडीशन ऑफ द इन्वर्टर सर्किट।
if BJT is working as an inverter. Clear? So if high देते हैं तो आउटपुट आपको लो मिलेगा. लो और हाई आउटपुट कहाँ मिलेगा? कलेक्टर टर्मिनल पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आउटपुट हमें कलेक्टर टर्मिनल से रिसीव हो रहा है. ठीक है, और आप लोग को पता भी है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट कहाँ से मिलता है? कलेक्टर टर्मिनल से मिलता है. You all are familiar with the biasing conditions. You all have already studied in previous years. Clear? So इसके और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे हम इनपुट जो दे रहे हैं वो स्टेप इनपुट दे रहे हैं. स्टेप इनपुट क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज स्टेप इनपुट? हेलो, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज स्टेप इनपुट? कोई बताएगा बेटा? सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, अभी हम अटेंडेंस लेंगे भी आपकी. ठीक है, हेलो क्लास, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है. ठीक है सर. ठीक है, अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिएगा. बाकी मैं अभी इन बिटवीन द सेशन आई विल टेक द अटेंडेंस बाय टर्न ऑन Okay, sir. योर. आप लोग की वीडियो ऑन करा के हम अटेंडेंस लेंगे. ठीक है, ओके ओके. सो अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के. उसके बाद हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देन वी हैव VTC. एक टर्म्स आपको दिख रहा होगा DC एनालिसिस में. VTC होता है वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स या कर्व. क्लियर? तो एग्जैक्टली क्या है, जो हम दो एनालिसिस करेंगे, ट्रांजिएंट एनालिसिस और DC एनालिसिस. ठीक है, ये दोनों एनालिसिस हम इन्वर्टर सर्किट पे परफॉर्म करेंगे और वी ऑब्जर्व द आउटपुट बिहेवियर एज पर द इनपुट यूजिंग ट्रांजिएंट एंड DC एनालिसिस. क्लियर? तो NMOS इन्वर्टर आपका सेकेंड है एंड देन वी हैव CMOS इन्वर्टर. क्लियर? उसमें आप देख रहे होंगे CMOS इन्वर्टर में वी आर यूजिंग स्टेप इनपुट देन पल्स इनपुट. क्लियर? फॉर मेजरिंग द ट्रांजिएंट एनालिसिस देन वी आर यूजिंग द अगेन हाँ, इसके पैरामीटर्स भी आपको निकालने होंगे विथ एंड विदाउट पैरामीटर्स. क्लियर? सो यू विल ऑब्जर्व द transient analysis behavior with parameters and without parameters. Clear? Then we have fourth one, that is transient and DC analysis of NAND gate using CMOS inverter. Clear? So आप लोग को ये पता होगा कि कैसे हम लोग with the help of you can say CMOS inverter से हम लोग NAND gate कैसे डिजाइन करते हैं. Clear? CMOS inverter से या CMOS circuit की हेल्प से हम NAND गेट मतलब अगर हमें इन्वर्ट एनालिसिस करना हो NAND गेट की तो कैसे हम करेंगे. ठीक है, ये सब हम बताएंगे आपको. देन वी हैव ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ NOR गेट इन्वर्टर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ XOR गेट यूजिंग NOR गेट. ठीक है, ये सब सर्किट्स हम लोग जितनी भी आप देख रहे हैं सब CMOS से बना सकते हैं आप आराम से. ठीक है, then we have to design and perform transient analysis of D-latch using CMOS inverter. ठीक है, D-latch भी हम आपको बताएंगे क्या होता है. ठीक है, और then we have SR latch using CMOS inverter. ठीक है, इसके अलावा जो आपका 7th के बाद जो 3 एक्सपेरिमेंट हैं we will take it from the VSDL programmings. Clear? That I will decide later on. But the 7 experiment, at least 7 experiment will be taken from the PSpice based tools. Clear? So जो पहले स्टार्टिंग के हमारे हैं वहां से हम 7 एक्सपेरिमेंट लेंगे. ठीक है, क्लियर? नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. बेसिकली CMOS इन्वर्टर होता क्या है, वो सॉरी BJT एज ए इन्वर्टर होता क्या है, जो कि आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव भी है. ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ BJT इन्वर्टर यूजिंग स्टेप इनपुट. So regarding this, we have another PDF which I am going to share you all. And first of all, I will tell you what is the circuit which we follow for the inverter circuit using BJT. Clear? Then we come to the
Actually, we don't have PSpice installed on the system. You also nobody have installed PSpice in your system. Actually, in the college lab it is available. So either we will show you the live demonstration of this, basically the, you can say, the experiments clear over here into the lab, or whatever situation we have been provided by the college as per the student connectivity. So we will just give you clear. So before going to introduce, we just want to share you the PDF. आवाज आ रही बेटा सभी को प्रॉपरली? Just wait, I'm sharing the file. Okay, so we have two files right now. Just trying to connect. Okay. ये फाइल दिख रही है बेटा सभी को? हेलो, ये सभी को दिख रहा है जो भी शेयर किया है मैंने? इज इट विजिबल? हेलो, Yes, sir. ये सभी Yes, को? sir. ओके, so this is the very basic circuit diagram for the BJT inverter. Clear? Can anyone explain the working of this, as you all have studied about this? Can anyone explain about this? Anyone? Okay. So just telling you, किसी को बेटा कोई आइडिया है सर्किट के बारे में? इस तरह की सर्किट आपने बाइसिंग कंडीशन में ही पढ़ी होगी, एम्पलीफायर में भी पढ़ी होगी, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. कैन एनीवन एक्सप्लेन हाउ दिस सर्किट वर्क्स? दिस इज वेरी बेसिक सर्किट रिगार्डिंग बीजेटी इन्वर्टर. कोई बता पाएगा? ओके, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. देखिए, सबसे पहले तो आपको सर्किट पता होनी चाहिए, ठीक है? आप डिजाइन करने जा रहे हो, एनालिसिस करने जा रहे हो, तो आपको उसकी फंडामेंटल सर्किट के बारे में आइडिया होनी चाहिए. ठीक है? सर्किट में मीन्स कि क्या कंपोनेंट लगे हैं, कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कौन सा ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, एनपीएन और पीएनपी, अगर वो बीजेटी बेस्ड है. क्लियर? उसके बाद आपका सप्लाई वोल्टेज कितना दे रहे हैं, ठीक है, और डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं या एसी सप्लाई यूज कर रहे हैं, इनपुट कहाँ दे रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है? टर्मिनल्स कौन कौन से हैं. तो जैसा कि आप लोग को सभी को पता है, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है. एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है ऑन द एमिटर टर्मिनल. सो इट इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर. क्लियर? ये इसका कलेक्टर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है, ये एमिटर टर्मिनल है. ठीक है? डायरेक्शन हम लोग करंट की एमिटर पे ही दिखाते हैं, ये सभी को पता है. ठीक है? ये जो कलेक्टर टर्मिनल है, इस पे हमने एक कलेक्टर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है जिसकी वैल्यू 1 किलो ओम की है. ठीक है? ये बेस टर्मिनल है, बेस पे हमने एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है सीरीज में विद द बेस टर्मिनल. और ये एमिटर है जिसको हमने कॉमन किया हुआ है, या वी कैन से इट इज ग्राउंडेड. क्लियर? जो सप्लाई हम कनेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. दिस इज द सप्लाई वोल्टेज जो कि +5 वोल्ट डीसी है. ठीक है? जो कि इस टर्मिनल पे कनेक्टेड है, और यू कैन से इज कनेक्टेड बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर. क्लियर? So this is the supply voltage that is connected on the collector terminal, that is of higher value of +5 volt. Clear? And this is grounded. So आपकी सर्किट पूरी कंप्लीट है from higher to lower potential. Clear? दाव इनपुट पे आप देख सकते हैं, इनपुट पे चूंकि ये बेस टर्मिनल है तो बेस पे हमने एक बेस करेगा पे डीसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, बेस टर्मिनल वोल्टेज. क्लियर? और
ये आपका 10 किलो ओम है। बेस की रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई क्यों है? क्योंकि बेस करंट इज वेरी लो एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड एमिटर, सभी को पता होगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑफ वेरी लो वैल्यू, वो हाई वैल्यू। क्लियर? बेस रेजिस्टेंस। अब इन्वर्टर की तरह इसको वर्क कराना है तो हम इनपुट, हमने अभी आपको बताया, हम बेस पे इनपुट देंगे और आउटपुट हमको कलेक्टर टर्मिनल पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि चूंकि बेस आपका यहाँ कनेक्टेड है, अगर बेस पे आप लो सिग्नल देते हो, ठीक है, जो सिग्नल आप इनपुट पे अप्लाई कर रहे हो, सपोज लो सिग्नल इज अप्लाइड, तो वो क्या होगा, वो इस ट्रांजिस्टर को ऑन नहीं करेगा। ठीक है, जो बेस टर्मिनल है, ट्रांजिस्टर आपका ऑन नहीं हो पाएगा क्योंकि यू आर अप्लाइंग लो इनपुट सिग्नल। सो अगर ये ऑन नहीं होगा तो आउटपुट पे क्या होगा, आउटपुट सर्किटरी पे कोई पाथ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये ऑन नहीं होगा तो ये इसको सप्लाई नहीं कर पाएगा करंट। तो एग्जैक्टली वी कैन से, जो भी यहाँ से आउटपुट मिलेगा इस टर्मिनल पे, कलेक्टर टर्मिनल पे, वो क्या मिलेगा कि यहाँ नीचे से पाथ तो ब्रेक हो जाएगा, तो ये कलेक्टर का आउटपुट क्या करेगी, ये क्या करेगा, कलेक्टर टर्मिनल जो ऊपर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मान लीजिए हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये चूंकि ये ऑन नहीं हुआ ट्रांजिस्टर, तो इसको नीचे से तो पाथ मिलेगा नहीं, नीचे तो ऑन ही नहीं हुआ ट्रांजिस्टर, तो आउटपुट क्या शो करेगा, यहाँ पे वी आउट क्या शो करेगा, जो भी ये 5 वोल्ट की सप्लाई है ये ऊपर से आके यहाँ आउटपुट पे मिल जाएगी। यहाँ से पाथ, इसी ऊपर से पाथ ले लेगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, कलेक्टर रेजिस्टेंस से, और आउटपुट पे शो कर देगा। तो आउटपुट पे क्या शो करेगा, 5 वोल्ट। इनपुट आपने क्या दिया था, 0 या लो वोल्टेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, यस सर। ये समझ में आ रहा है बेटा जो समझा रहा हूँ मैं? यस सर। क्योंकि जब ट्रांजिस्टर ऑन हुआ ही नहीं, इनपुट आपने लो दिया तो ट्रांजिस्टर के बेस पे लो इनपुट दिया तो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हुआ। ऑन नहीं हुआ तो ये नीचे से पाथ नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर ऑन होता तब वो एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है और उसके थ्रू वो पाथ लेके नीचे की तरफ जाता है। लेकिन जब ये ऑन ही नहीं हुआ तो ये रास्ता इसके लिए ब्रेक हो गया। तो ये अब ये कहीं ना कहीं से तो आउटपुट देगा ही। तो आउटपुट नीचे से ना देके, कि जो आउटपुट यहाँ पे हमने बताया ना, यहाँ बैटरी जो हमने कनेक्ट करी, यही बैटरी आपकी ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, प्लस 5 वोल्ट। तो ये जो 5 वोल्ट बैटरी है, इसी से ये आउटपुट ले लेगा और ये पाथ ऐसे ऐसे आके रेजिस्टेंस से होते हुए आउटपुट पे आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि 5 वोल्ट ये आउटपुट पे शो करेगा। तो इन्वर्ट हो गया, इनपुट आपने लो दिया था, आउटपुट हाई मिल गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इनपुट हाई देते हैं, सपोज वी आर गिविंग नाउ इनपुट हाई, तो अगर हम इनपुट हाई देंगे तो हाई में क्या होगा, अब हाई आपने दिया इस कंडीशन में तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो ये पाथ पहले ब्रेक हो रहा था, अब ये पाथ ब्रेक नहीं होगा, अब इसको रास्ता मिल जाएगा। तो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो टेंडेंसी क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये, या एक तरह से कह सकते हैं लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है हमेशा। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस पाथ इसको कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ ही मिलेगा, क्योंकि ऊपर तो उससे कंपैरिजन में हाई रेजिस्टेंस पाथ है, तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अभी हमारा जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट था जो पहले मिला था आपको, है ना, जब लो था इनपुट, वो 5 वोल्ट अभी इसके पास स्टोर्ड है। अब क्या होगा, ये तुरंत का तुरंत नहीं हटेगा। ठीक है, ये एक्चुअली जो सर्किट होती है स्टोरिंग, स्टोरेज हम लोग एक तरह से कह सकते हैं चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, जो कि उस पोटेंशियल को, उस वोल्टेज को होल्ड करता है। तो एक बार ये प्लस 5 वोल्ट हमारा कुछ देर के लिए होल्ड हो गया, इसके बाद अब जैसे ही वो साइकिल हाई की तरफ गई तो ये क्या करेगा, हाई में होते ही जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, अब ये रास्ता नीचे की तरफ मिल जाएगा इसको, पाथ। ठीक है, लो रेजिस्टेंस पाथ ऊपर की वजह, अब ये जो आउटपुट इसका 5 था इस समय, वो सीधे नीचे जाके ग्राउंड हो जाएगा, मीन्स आउटपुट इट विल बी लो। आउटपुट को क्या बना देगा, लो बना देगा, ग्राउंड कर देगा। ठीक है, तो ग्राउंड होने का मतलब 0 मिल जाएगा, तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 0। ये समझ में आ रहा है बेटा, बीजेटी एज ए इन्वर्टर समझ में आ रहा है? हेलो,
हेलो बेटा, समझ में आ रहा है यस सर, बीजेटी यस एज ए सर। इन्वर्टर? इसमें किसी को Yes, डाउट हो सर तो? आउटपुट सर जो वीबीबी है वो हाई, मतलब जब 5 वोल्ट से ग्रेटर होगा तब उसको हाई कंसिडर करेंगे। नहीं, मैक्सिमम वोल्टेज एग्जैक्टली वी आर गिविंग 5 वोल्ट, जो सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं। सप्लाई यस वोल्टेज सर। क्या है? ये जो डीसी वोल्टेज दे रहे हैं, यही हमारा सप्लाई वोल्टेज है। तो मैक्सिमम हम +5 वोल्ट दे रहे हैं, और मिनिमम आपका ग्राउंड है, जो कि आप रेफरेंस सिग्नल है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो यस सर। है ना, तो 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर हम मैक्सिमम ही 5 वोल्ट दे रहे हैं तो 5 से ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है। इनपुट पे जो सिग्नल हम दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पल्स सिग्नल हम दे रहे हैं, सपोज, ठीक है, वी आर गिविंग एन इनपुट सिग्नल लाइक दिस। एसी सिग्नल भी दे सकते हैं आप, ठीक है। इसका जो एम्पलीट्यूड है +5 वोल्ट है। कितना है? +5 वोल्ट। और जो लोअर वैल्यू है इसकी, ये 0 है, ये -5। क्लियर? ठीक है। यस सर। यस इस सर। तरीके, तो लो देने का मतलब है हम 0 दे रहे हैं, हाई देने का मतलब है +5 दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक है मैक्सिमम सप्लाई ही हम +5 वोल्ट यूज कर रहे हैं। एनी अदर डाउट? किसी को कोई और डाउट है? तो ये समझ में आ गया ये सर्किट एज ए इन्वर्टर कैसे काम कर रही है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है कि सर्किट एज ए इन्वर्टर कैसे काम कर रही है तो पूछ सकते हैं। ओके, अब आप देखिए, एक चीज आप लोग को और पता होगी। हैव यू नो अबाउट यूनिट स्टेप फंक्शन? यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में जानते हैं आप लोग? बेटा, यूनिट स्टेप फंक्शन जानते हैं आप लोग? हेलो? यस सर। यूनिट स्टेप फंक्शन जानते हैं बेटा क्या होता है? पढ़ा तो होगा ना सिग्नल सिस्टम में, सर यूनिट जो स्टेप फंक्शन। t = 0 के बाद 1 हो, t = 0 के बाद 1 हो। अच्छा, ऑन हो जाए मतलब। अच्छा, कोई और बताएगा? t <0 पे क्या होगा? ऑफ रहेगा। यस सर। ओके, एनीवन एल्स हु हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? अच्छा, मान लीजिए अगर हम स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हाउ कैन यू कनेक्ट दिस विद द बीजेटी ट्रांजिस्टर इन्वर्टर सर्किट? वुड यू हैव एनी आइडिया? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ वुड यू कनेक्ट विद टाइम के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे आपने बताया ना स्टेप इनपुट में t <0 पे हमारा 1 आना चाहिए। तो हैव यू एनी आइडिया? मीन्स इफ यू आर इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड, योर signal will be high, exactly, your response will be high. क्यों? am I right? यस सर। t is greater than 0 पे, greater than यस। equal to 0 पे, your response is high. it means what? कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो या टाइम इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका रिस्पांस भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसा ही है ना? ओके, सो अब हम इसको आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस दिखा रहे हैं इसका। ये देखिए, इस तरीके से कुछ रिस्पांस आएगा, ठीक है। ये रिस्पांस आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही कुछ रिस्पांस आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है मैं बता देता हूँ। ये जो आपको कर्व मिलेगा ऐसा ही आना चाहिए कर्व, ठीक है। और एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो जो ये +5 वोल्ट है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था, जो सप्लाई वोल्टेज है, तो मैक्सिमम से ज्यादा तो ये जाएगा नहीं। तो मैक्सिमम +5 वोल्ट हम लोग दे रहे थे, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, इज द मिनिमम वैल्यू। ये आउटपुट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रांसफर कर्व भी इसको बोलते हैं, वोल्टेज ट्रांसफर कर्व। वोल्टेज ट्रांसफर कर्व का मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। जो वीटीसी आपने एक टर्म देखा था, वीटीसी लिखा हुआ था, वीटीसी का मतलब होता है वोल्टेज ट्रांसफर कर्व, विच रिप्रेजेंट्स
द आउटपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। तो ये जो एक्सिस है आपकी आउटपुट वोल्टेज है और ये जो एक्सिस है आपकी इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज